Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach the most important and the high yielding topic of UPSC and UPPCS, that is President of India, and the topic is President of India. So here I'm going to tell you what is President of India. So President of India is the head of the state and the first citizen of the country. He is the first citizen of the country and he is a symbol of solidarity, unity, integrity of the nation. Okay, and he is a part of Union Executive. ये Union Executive का part है, in which Vice President and President, Prime Minister, Council of Minister and Attorney General, they play very important role. So all together in majority they play a very important role just to take the country ahead. Okay, now we come to election of the president. Okay, we come to the election of the president. So there is no direct election for the president. Okay, कोई भी direct election का नहीं होता है. There is an electoral college. क्या है? एक electoral college होता है for their election. ओके अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में हाउ मेनी ऑफ पीपल एंड द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व. सो लोकसभा एंड राज्यसभा पीपल आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स ओनली. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विच ऑल्सो सिट्स इन द इलेक्शन ऑफ द president of India, and there is no legislative council's role, okay, in the election of India. Remember this thing. So legislative assemblies of the union territories like Delhi and Puducherry, they also play very important role. Okay, Delhi and Puducherry ka legislative assembly, which also is a part of the electoral college of the president of India. Okay, now what is the value of the vote of MLA? Okay, what is the value of the vote of MLA for the election, and what is the value of the vote of an MP? Okay, so value of the vote of an MLA is like the total value of the state and the total number of elected members in the state legislative assembly. Okay, and ये तो हमारे MLA का हमारा वोट बैंक है, किस तरीके से हमारा वोट MLA का इसमें है इनके इलेक्शन के लिए. Now अब हमारा what is the value of the vote of an MP? So the total value of vote of all the MLAs of India, of all the states, I would say, and total number of elected members of the parliament. So this is a ratio in which the people are involved in the election of the president. Okay, अब now who does not take part in the president's election? president की election में कौन कौन participate नहीं करता है, कौन कौन नहीं करता है? Remember this thing. तो जो nominated members हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा के लोग होते हैं बट वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ना ही कि नॉमिनेटेड. अब जैसे हमारे लोकसभा में देयर आर 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा में देयर आर द 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स. सो दीज 2 and 12 यानी कि टोटल 14 people from the parliament will not be sitting in the election of the president of India. अच्छा, nominated members of the state legislative assemblies, they will not be sitting, remember. And the members of the legislative council, ठीक है, बोथ इलेक्टेड, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड, देखिए यहाँ पे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटिव, कोई भी nobody will be sitting in the election of the president in bicameral legislative. ओके, बाईकैमरल लेजिस्लेटिव यानी कि जो द्विसदनात्मक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ओके, नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरी जो भी हमारी यूटीज है लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे यहाँ इसमें नहीं होंगे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स विल बी सिटिंग इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर्स. ओके, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे हमारे टर्म्स क्या हैं. टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कितना कार्यकाल इनका रहता है. सो ऑलवेज आर प्रेसिडेंट रिमेन एंड होल्ड्स द ऑफिस ओनली फॉर द 5 years. 5 years तक के लिए बैठते हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है इट कैन बी एक्सटेंडेड लिटिल मोर. उनका कार्यकाल है थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है जब तक दूसरे इलेक्शन ना हो, या जब तक दूसरा हमारा जो हमारा क्या नाम है प्रेसिडेंट है, जब तक वो री इलेक्ट होके नहीं आ जाता है, टिल देन हमारा कोई भी जो प्रेसिडेंट है नया जब तक नहीं आ जाता तब तक जो पुराना प्रेसिडेंट है, आफ्टर कंप्लीटिंग दी 5 year ड्यूरेशन, ही विल बी होल्डिंग दी ऑफिस. ओके,
नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, एंड ही शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स होनी चाहिए, एंड ही शुड शो द क्वालिटी एंड द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि उसके पास वो सब कंडीशंस और क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक लोकसभा के मेंबर के पास में होता है, एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस फॉर प्रॉफिट अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। उसको किसी भी पब्लिक मतलब ऑफिस के प्रॉफिट के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए इंडिविजुअल नहीं रहना है, वेदर इट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ वी कम टू द अनदर हेडिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस में कंडीशन क्या क्या होती हैं? ओके, सो ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो उसे प्रेसिडेंट बनना है, इफ समबडी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इवन इफ he has been a member of either of the house, he should vacate the seat on the first day of the president in India। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का प्रेसिडेंट है तो उसको फर्स्ट डे ही अपनी सीट जो है दैट इज टू बी वेकेट, फाइन, एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस, उसको किसी भी प्रॉफिट के लिए अपना जो ऑफिस है वो होल्ड नहीं करना है। ही इज देयर फॉर द पोजीशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड टू डील द कंट्रीज प्रॉब्लम। ओके, सो फॉर हिज रेजिडेंस like राष्ट्रपति भवन is provided to him without the payment of rent। अब like president of India gets the राष्ट्रपति भवन, this is a residence of the prime minister, so without taking any rent or any amount, okay, it is given, and the parliament decides there is no diminution of his emoluments and the allowance during the term of the office। So whatever amount, the money, allowance and the perks which he is getting from his service, that will not be diminishing during his tenure, okay, and parliament decides its emoluments, so the whole emoluments, allowance and the privilege which a president is getting should be given and decided by the Parliament of India, okay, and like during the tenure he should not be arrested, he should not be imprisoned, okay, we cannot do this for any of the रीजन, ओके, एंड इम्पीचमेंट। अब देखिए जो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट है, यानी कि उसको कुर्सी से कैसे करके, उसकी पोजीशन से कैसे करके हटाया जा सकता है। सो देयर इज ओनली वन रीजन, इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ ही चीट्स द पोजीशन, ऑन दैट कंडीशन ही कैन बी इम्पीच्ड, ओके, द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी टेकिंग प्लेस, अदरवाइज देयर इज नो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ प्रेसिडेंट, अब देखते हैं अब क्या चीज नेक्स्ट है। प्रेसिडेंट ऑफिस कैन बी वेकेटेड, किन किन कंडीशन पे, किन किन कारणों की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है, वो सीट है, वो वेकेट हो सकती है। ओके, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपेल्स हिज टर्न, completes his term of 5 years in the office, अगर वो अपना पूरा 5 साल पूरे कर लेता है अपने कार्य के, ओके, एंड इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस बाय पुटिंग फॉरवर्ड, अगर हिज रेजिग्नेशन, अगर वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे देता है तो उस लेवल पे उसकी सीट खाली हो सकती है। इफ लोकसभा राज्यसभा इनिशिएट्स एंड इम्पीचमेंट, अगर लोकसभा राज्यसभा में इसको किसी भी मिसचीव, इसने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कोई भी वायलेट किया है, समथिंग रॉन्ग हैज डन, तो उस पर क्या नाम है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा प्रेसिडेंट को अपनी सीट से हटाया जा सकता है। अगर अपने वो टेन्योर के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इफ ही डाइज देन ही द पोजीशन विल बी वेकेंट, ओके। इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड, अगर जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उसका जो इलेक्शन हुआ है, अगर वो इलेक्शन इनवैलिड, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है नाउ दिस इलेक्शन इज इनवैलिड, देन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सीट है दैट विल बी वेकेटेड। ओके, अब हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, ओके। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे पहले जो पावर है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका शक्ति, वो किस किस तरीके से काम कर सकता है। सो फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकिंग इन हिज
नेम, जितने भी काम हमारे इंडिया में हो रहे हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। एंड ही मे और मे नॉट rules of simplify the transaction of business of the central government, okay? एंड वो अपने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नाम पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड ये कई सारी पोजीशंस को भी होल्ड कर मतलब अपॉइंट करता है, लाइक ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन, ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको इलेक्ट करता है, प्लस उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनको कितनी सैलरी देना है, कितना सब उनको सुविधाएं दी जाएंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिनको हम CAG बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी अपॉइंट करता है, ओके। चेयरमैन एंड दी मेंबर ऑफ द UPSC, ओके, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड स्टेट गवर्नर जो भी होते हैं, एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स, उनको भी है, दैट इज इलेक्टेड, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। एंड उसके बाद में क्या है, ही सीक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां से इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है किसी भी तरीके की। एंड ही रिक्वायर्स PM टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एनी ऑफ द मैटर विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल्स, ओके। एंड ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशंस, जितने भी हमारे नेशनल के कमीशंस होते हैं, लाइक शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, उनके भी ये जो हेड है उनको भी अपॉइंट करता है। एंड ही अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। एंड ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया और एज ए शेड्यूल एरिया, वो किसी भी भारत देश के किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया भी डिक्लेयर कर सकता है, ओके, फॉर दी शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ओके। एंड अब हम आते हैं अपना लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं। सो ही, अब लेजिस्लेटिव पावर कौन सी, यानी कि विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। ही समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, वो पार्लियामेंट को कभी भी बुला सकता है या सदन को स्थगित भी कर सकता है या फिर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो दिस मच पावर president has as a legislative, I would say a legislative power, okay। अब इसके बाद में क्या है, ही समन्स, वो ज्वाइंट सिटिंग कभी भी बुला सकता है लोकसभा की, कभी भी ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की इन केस ऑफ एनी डेडलॉक, चाहे कितना भी कुछ भी बंद चल रहा हो, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की बुला लेता है। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने पे ही इनकी सिटिंग्स होनी अनिवार्य है, ओके। एंड ही एड्रेसेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, वो हमेशा जो भी फर्स्ट हमारा इलेक्शन होता है तो उसके बाद वो पार्लियामेंट को एड्रेस करता है एज ए, ठीक है, एड्रेस करता है। एंड ही अपॉइंट स्पीकर, वो स्पीकर को भी, लोकसभा के स्पीकर को भी अपॉइंट करता है, डिप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट करता है लोकसभा के। एंड द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा, इनको भी अपॉइंट करता है। व्हेन द सीट्स फॉल वेकेंट, जब कोई भी सीट्स वेकेंट हो जाती है, ओके, कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में स्पीकर की, डिप्यूटी स्पीकर की या चेयरमैन की सीट वेकेंट है तो उस दौरान प्रेसिडेंट जो इंडिया है वहाँ पे रीअपॉइंट करता है। वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के जो 2 मेंबर होते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उनको भी नॉमिनेट हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। एंड ही कंसल्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया on the request of the disqualification of the MPs, okay, and he recommends permits the introduction of certain types of the bill, okay, he promulgates ordinances, ठीक है, लाइक जितनी भी कैग है, UPSC फाइन कमीशन है, इनको भी पूरा लुक आफ्टर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसकी हमारी फाइनेंशियल पावर्स आ जाती हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमारी जो फाइनेंशियल जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के पास में है। वो क्या नाम है, पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है प्रायर रिकमेंडेशन, हिज प्रायर रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी मस्ट,
अगर हमारे मनी बिल अगर पार्लियामेंट में अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही कॉजेज यूनियन बजट ओके टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो उस पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत करने से पहले ये जो है दिखाना, प्रेसिडेंट के लिए दिखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यूनियन बजट को। ओके, टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज प्री रिक्विजिट। किसी भी तरीके के कोई भी हमें ग्रांट्स चाहिए कोई भी वेलफेयर के लिए, तो उसमें भी हमारे को राष्ट्रपति का कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, कंटिजेंसी फंड जो है ऑफ इंडिया के इज अंडर हिज कंट्रोल ओके, एंड ही कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन को हर जो 5 वर्ष में जो बनाया जाता है वो भी इसी के थ्रू। ओके, अब हमारी जुडिशियल पावर क्या क्या गई है। सो ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस को भी अपॉइंट करता है। ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर दोज एडवाइसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। अगर जब भी ये चाहे सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ये कोई एडवाइस ले रहा है तो उसके लिए बाइंड है, किसी को मानना ही मानना है। ये तो उसकी मर्जी के ऊपर है प्रेसिडेंट की कि वो बात अगर सही लगती है तो वो कंसेंट माने, ठीक है, नहीं लगती है तो उसको डिनाई भी कर सकता है। ही हैज पार्डनिंग पावर, उसको मृत्यु जो दंड दिया जाता है उस पर भी पार्डनिंग पावर का भी जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के है, जो और किसी को नहीं है। अब इसकी मिलिट्री पावर पे आते हैं। मिलिट्री पावर ओके, मिलिट्री पावर यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही इज द हेड ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयर फोर्स। वो तीनों सेनाओं, जल, वायु और स्थल सेना का हेड है। ओके, एंड इमरजेंसी पावर क्या है, जब कभी भी हमारे देश पे किसी भी तरीके का कोई संकट आ जाता है तब हम उस पर इमरजेंसी लगाते हैं। एक तो है हमारी नेशनल इमरजेंसी जो हमारी आती है आर्टिकल 352 में, दूसरी है हमारी प्रेसिडेंट्स रूल है जो आर्टिकल 356 और 365 में आते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 में आता है। ओके, सो दीज आर दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एब्सोल्युटली दिस इज अ वेरी हाई yielding topic. If students, if you want these kinds of topic, so for the preparation of UPSC and UPPCS, kindly like, share and subscribe my channel and comment below it. Okay, thank you very much.